बाकी लोग आ जाएं, ठीक है। यस सर। बाकी लोग आ जाएं अभी, फिर शुरू करते हैं। Just wait. साईराम सर। साईराम टू, साईराम निखिल, साईराम उत्कर, उवेश, साईराम। साईराम सर। साईराम। क्या दुबई है क्या स्टेडियम में हार्दिक? यस सर। दुबई में बैठा है क्या? नहीं सर। दुबई में बैठा है क्या? की आवाज आ रही है। नहीं तो सर, किसकी है? क्राउड जैसे वो छक्का। और ठीक है बाकी। यस सर। साईराम सर। साईराम, साईराम। हर्षित, साईराम पटेल। तुम लोग ये जो वीडियो अपन लोग रिकॉर्ड करते हैं इसको देखते हो क्या बीच बीच में कभी? सर जैसे अगर कुछ मतलब कुछ याद नहीं आ रहा हो उस क्लास से तो देख। उसमें क्लियर आ रही है सारी चीजें अपनी? हाँ सर, दिखता तो सही है सर। कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर। ओके। साईराम कार्तिक, कार्तिक साईराम, साईराम। मैं भी मालूम चुप क्यों बैठा हुआ हूँ। आप जैसे आप लोग चुप बैठ जाते हैं ना, तो मुझे कैसा लगता होगा ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए कि चलो मैं भी चुप बैठता हूँ, बात नहीं करता हूँ मैं। 1-2 मिनट अभी है मेरे पास में, 1 मिनट बाकी। ऑल राइट। तो 2:05 हो गए हैं और बाकी जो आएंगे आएंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ अवर वर्क। तो as we have already assigned the work, right? Deepesh, are you ready with your presentation, beta? यस सर। Very good. So as we all are knowing very well that today we are going to start with new topic, and that is called physiology and injury in sports, right? In this, the first topic which Deepesh is going to present is physiological factor
determining strength and speed is going to be presented by, sorry, speed is presented by Hardik and strength will be presented by Deepesh. So first opportunity is going to Deepesh Kumar, and I will request to Deepesh kindly share your screen, and if you are having a Yes, sir. presentation, you can start. All the best. And if anybody is having any doubt, any question, please don't hold your ask, discuss, and get cleared here only. All right? Don't just lingering down and spoil your time. So just ask and discuss here. Deepesh, over to you. Sir, screen is visible to you? No, beta, it's not coming. Might be little slow. Present again. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now it is coming. Deepesh Kumar is presenting. Yes, sir. Yes. Very good. Now we all can see. My topic is physiological factor determining strength. Muscle composition. There are two types of fibers in muscle. That is fast twitch fibers and slow twitch fibers. The muscles which consist of more percentage of fast twitch fibers will produce more strength. हमारे मसल्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर. स्लो ट्विच फाइबर्स जिसमें जिन मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड, साइज ऑफ द मसल. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मसल्स. As larger and bigger muscle produce more force, and with the help of different methods of strength training, the size of the muscle can be increased. Just hold on. थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं क्या स्क्रीन को आप अपनी को? Yes, sir. थोड़ा करो. Very good. Bas, excellent. Bas. Very nice. Yes, Now sir. see, here he has presented 2 points. One is called muscles composition and second is size of the muscles. Now the muscles compositions में क्या होता है? There are two types of fibers in the muscles. One is white muscles fibers and second is red muscles fibers. So this fast twitch muscles fibers किसको बोलते हैं? जो white muscles fibers है. और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स किसको बोलते हैं? जो रेड मसल्स फाइबर्स है. And these muscles which consist of more percentage of white muscles fibers or white twitch muscles fibers will produce more strength. All right. Now the size of the muscles is also become very important. The strength of an individual depends on the size of the muscles, as the large and bigger muscles produce more force, and with the help of different method of strength training. तो जो लार्ज मसल्स कहाँ पे हमारे? लार्ज मसल्स, फोर आर्म्स में लार्ज मसल्स, थाइज में लार्ज मसल्स, बैक में लार्ज मसल्स. समझ रहे? तो जितनी लंबी हमारी मसल साइज होगी वो ज्यादा उतना स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा. ठीक है? एंड द बिगर मसल्स प्रोड्यूस मोर फोर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अब इन मसल्स को भी ट्रेन किया जा सकता है. These all muscles can also be trained with the help of training program, and the size of the muscles can also be increased. कैसे कर सकते हैं increase? With the help of exercises. अब help of exercises में क्या होता है? Circulum of the muscles get thickened, thickness बढ़ जाती है उसकी, and the size of the muscles also increases. तो इसके कारण ये 2 point. Next point. Over to Deepesh. Yes, sir. Body weight. There is a positive relation between body weight and strength. The individuals who are heavier are stronger than the individuals who are lighter in weight.
वेट एंड स्ट्रेंथ में एक पॉजिटिव रिलेशन है, जिसमें जो हैवी वेट वाले लोग होते हैं उनकी ज़्यादा स्ट्रोंगर स्ट्रेंथ होती है, और जो लाइट वेट वाले लोग होते हैं उनकी कम स्ट्रेंथ होती है। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स आर द ब्रेन मैसेज टू स्केलेटल मसल। नर्व इम्पल्स वो होते हैं जो ब्रेन से मैसेज पहुंचाते हैं। A stronger nerve impulse bring powerful contraction of muscle, thus the strength is higher. The intensity of neuromuscular response impulses determine strength. जो जितने जो नर्व इम्पल्स जितनी पावरफुल होती हैं, मतलब उनको जल्दी है ना मैसेज पहुंचा देती हैं, उनका मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हमारे गाल पर मच्छर बैठ जाए तो हमारा ब्रेन हमारे हाथ को वो मैसेज पहुंचाएगा, फिर और उसी टाइम पे हमारे हाथ डायरेक्ट एक्शन लेंगे। एडिक्वेट एनर्जी, greater number of mitochondria in muscle fiber produce more energy and stronger and longer the muscle contraction। जो हमारे जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हमारे मसल फाइबर में, उतनी ज़्यादा हमें उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, Now, adequate energy. Adequate, bit on, beta, bit on. यस सर। Greater number of mitochondria in the muscles fibers produce more energy and strong and longer the muscles contraction. Now, where the mitochondria lies? कौन बताएगा? In cell. What is the? In cell. Sorry. In cell. दोबारा बोलो। In cells. It means जितनी ज्यादा से ज्यादा सेल्स मसल्स में होंगे उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस मसल्स में होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? इट इज अ पावर हाउस टू स्टोर द एनर्जी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी मसल्स में स्टोर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर, और उतनी ही वो मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड दैट मसल्स इज एबल टू परफॉर्म देयर गिवन टास्क for the longer duration here, and longer the muscles contraction means muscles is able to contract, muscles able to work. So that strength of the muscles is also depend on the adequate energy, and energy we get it with the help of mitochondria. The intensity of nerve impulses are the brain message to the skeletal muscles, brain से body को command. A strong nerve impulse bring powerful contraction. जितना हमारा हेड और हैंड का कोऑर्डिनेशन होगा, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होगा, जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ पावरफुल होगा। व्हाई? बिकॉज़ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन दैट वे एंड thus the strength is higher. The intensity of neuromuscular responses or impulses determine the strength. जितना स्ट्रांग इंपल्स हमारा होगा, जितना स्ट्रांग हमारा रिस्पॉन्स होगा, उतनी ही स्ट्रेंथ हमारी बेटर होगी। बॉडी वेट, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। कहते हैं जितना बॉडी वेट आपका ज्यादा होगा उतना आप में स्ट्रेंथ होगी। तो आप देखते हैं पहलवान जो होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होते हैं। जितने भी बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स होते हैं वो सारे के सारे थोड़े बल्की नजर आते हैं। तो जितना बॉडी वेट ज्यादा होता है उतनी स्ट्रेंथफुल एक्टिविटीज दे आर गुड इन इट। द इंडिविजुअल हु आर हैवियर आर स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर इन द वेट। So strength also determined by the body weight, right? Yes, Deepesh. Next. Yes sir. Age. Strength of muscle is maximum between 20 to 40 years of age and it gradually weakens। जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स मैक्सिमम होती है 20 से 40 साल की एज में, और फिर ये बाद में कम होती जाती है। जेंडर, men have more strength as compared to women due to bigger and longer muscle strength in males। जो मतलब मैन होते हैं उनके उनके
उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू वुमेन। बॉडी वेट, ड्यू टू बॉडी बिगर वेट एंड एक, लॉन्गर मसल्स लेंथ। यस सर। मेल के मसल्स जो है थोड़े लंबे होते हैं इन द साइज, बिगर एंड लॉन्गर शेप एंड साइज में, और वुमेन्स के थोड़े उनसे छोटे होते हैं। यस। Yes, sir. Myoglobin. It is type of protein present in muscle fiber to store oxygen which produce energy during emergencies. Thus, higher myoglobin increase the strength of individual. जो मायोग्लोबिन एक सो एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे मसल फाइबर में पाया जाता है। उससे ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है और हम उसको एनर्जी को एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं इमरजेंसीज में। गुड। जितनी ज़्यादा मायोग्लोबिन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल होगी। ओके, वेरी गुड। ओवर। यस सर, ओवर। Okay, any doubt, any question? Mohammed, anything you want to ask to Hardik or Deepesh? Mohammed, any question? सर सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो कार्तिक। सर मायोग्लोबिन समझ नहीं आया सर। मायोग्लोबिन। दीपेश? मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे कि ऑक्सीजन स्टोर होती है उसमें, और जब उस ज़रूरत पड़ने पर हम उस एनर्जी को वो इमरजेंसीज में हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? बोले मायोग्लोबिन इज फाउंड इन द मसल्स वेयर मसल इट फाइबर। हैज muscle fibers, where it has help in storing the oxygen, and when the muscles get more myoglobin, the that muscles fibers is having the capability to store more oxygen. When they are having the more oxygen, more with the help of more oxygen, they are able to produce more oxygen, and when more energy, and when more energy is produced, it can be used in any form of emergency task. तो मसल्स में जितना ज्यादा मायोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा मसल्स इफेक्टिवली काम कर पाएगी इवन इन द इमरजेंसीज। कार्तिक, इज दैट ओके? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर बेटा। सर जैसे बॉडी वेट का कहा, हाँ। तो अगर किसी का बॉडी वेट नेसेसरी नहीं है तो उस पर स्ट्रेंथ वो बिल्डअप होना पॉसिबल नहीं है। देखिए, स्ट्रेंथ एक फैक्टर मान रहे हैं, एक फैक्टर पे बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी का वेट 40 किलो है और किसी का वेट 70 kg है। अब आप बताओ स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ? It is the ability to overcome resistance. It is the ability of the muscles to overcome the resistance, right? अब मान लीजिए जो 40 किलो वजन वाला बच्चा है उसको अपन ने बोला ये 50 kg वेट उठाओ, वो कंफर्टेबली उठाएगा या वो 75 kg इसका वेट है वो कंफर्टेबली उठाएगा? मसल्स का ध्यान रखिएगा, एक्सर्ट क्या कर रही है? मसल्स फोर्स कर रही है, और जितनी बड़ी और जितनी लंबी मसल्स होंगे उतना वो क्या करेगा? फोर्स को एक्सर्ट करेगा। ध्यान रखना, उस हिसाब से बॉडी वेट इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि जिसका बॉडी वेट ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, बट ही इज ऑलवेज अहेड इन दी स्ट्रेंथ। हार्दिक, बात पकड़ में आ रही है? 5 कंपोनेंट्स हैं, उस 5 कंपोनेंट्स में जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, जिसकी मसल साइज और मसल्स की लेंथ बड़ी है, वो उसकी स्ट्रेंथ बेटर होगी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीड में अच्छा है, स्ट्रेंथ में अच्छा, सॉरी इंडोरेंस में अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा, कोऑर्डिनेटिव, इन 4 की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ में वो बॉडी वेट वाला जो है वो आगे आगे बाहर खड़ा हो जाता है आगे।
क्लियर? ओके सर। ओके, राइट। और कोई सवाल? उवेश? उनकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है तो वो एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाती है। Strength can be improved with the help of exercise. This is the question. यस सर। Yes. See, it can be improved. How? Now suppose I will take your example. Now whatever the work you are able to do at in the present condition, and if you have been put it for the 3 months strength training program, and suppose your trainer or your coach has given you schedule that you have to do these certain exercises, and after 3 months जब ट्रेनिंग शुरू किया उस टाइम पे आपके मेजरमेंट्स ले लिए बॉडी के, आपके बाइसेप्स को मेजर कर लिया, आपके ट्राइसेप्स को मेजर कर लिया, आपके काफ मसल्स को मेजर कर लिया, आपके बैक मसल, हर चीज का आपका पहले 3 महीने पहले ट्रेनिंग करने से पहले आपके मेजरमेंट ले लिए, कितना आप वर्कआउट कर पा रहे थे, एंड आफ्टर दैट 3 महीने तक आपने ट्रेनिंग की, तो आप देखेंगे कि आपके मसल साइज बढ़ गए, बाइसेप्स साइज बढ़ गया, ट्राइसेप्स साइज बढ़ गया, काफ साइज बदल गया, बढ़ गया। तो जो साइज बढ़ता है वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ सर्कोलीमा, वन फ्लूइड इज फाउंड इन द मसल्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट एक्सरसाइजेस, सर्कोलीमा गेट थिकन, थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, और थिकनेस बढ़ने से क्या होता है, मसल्स का साइज भी बढ़ जाता है और शेप भी बढ़ जाता है, एंड दैट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ। ये मैं बहुत लेमेन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। अभी आप जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे आगे जाके, आपकी कैरिकुलम में है, देयर यू विल स्टडी अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर देयर इन द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, एंड देयर यू विल फाइंड दैट स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी ट्रेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है नियति? हेलो? यस सर। Okay. It can be trained. Strength training can be gained with the help of training program, specific training program. Yes, any सवाल? पार्थ, मोहम्मद, मोहम्मद है यहाँ पे? पलक? यस सर। हाँ मोहम्मद, कोई सवाल बेटा? नो सर। Okay, good. Chalo. Now the next chapter is given to the Hardik. Hardik will talk about the speed, right? Yes. Physiological factor determines speed. Now see, we are taking the components: strength, speed, endurance, flexibility. These all are the components of physical fitness, and how these components are determined with the help of these physiological factors. This we are discussing here. All right, Hardik, over to you. Sir, is it visible? Yes, it is visible. Very well visible. Psychological factors for determining speed. Physiological factor determining speed. Physiological. कोई बात नहीं, वो एस और एच का हमेशा पंगा रहता है। गुड। Physiological factors for determining speed. The following are factors for determining speed. The first point is muscle composition. The muscles, which consist of more percentage of fast twitch fibers, contract with more speed and produce greater speed. जैसे कि अभी दीपेश ने मसल फाइबर्स का कहा, स्पीड में भी सेम मसल फाइबर्स यूज होते हैं, और जितनी फास्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, दैट produces more speed or greater speed. The percentage of twitch fibers contract together. Different muscles of the body have different percentage of twitch fibers. जैसे कि हमारी थाइज और काफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्विच फाइबर्स होते हैं,
Now the second point is explosive strength. It depends on the shape, size and coordination of muscles. इसमें मतलब हर शेप और साइज की मसल्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं लगा सकती. जैसे मसल्स क्या है, मसल्स तो हर जगह होती है. हमारी आंखों में मसल्स हैं, नाक में मसल्स हैं, बट they can't produce explosive strength like other muscles like our thighs, calves, abs, biceps and etc. So coordination of muscles is important in explosive strength and speed. For very quick explosive movement, explosive strength is required. The related proportion of fast twitch fibers and slow twitch fibers determines the maximum possible speed with which the muscle can contract. इन दोनों का जो बेस्ट प्रोपोर्शन होता है बॉडी में, जहाँ जहाँ पे हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इनका बेस्ट प्रोपोर्शन जहाँ मिलता है, वहाँ पे परफेक्ट मैक्सिमम आउटपुट हमें देखने को मिलता है स्पीड से रिलेटेड. क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत जल्दी कर सकती कि जैसे जब फास्ट ट्विच फाइबर्स रिलैक्स हो रहे हैं तो स्लो ट्विच फाइबर्स उसको बैकअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और फिर जब स्लो ट्विच फाइबर्स रिलैक्स हो रहे हैं तो वो फास्ट ट्विच फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लाइक दिस. More points are flexibility. It also determines the speed. Good flexibility. Good flexibility allows flexibility अपने आप में एक पॉइंट वो है, कंपोनेंट है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का. सो पर ये स्पीड के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. Good flexibility allows maximum range of movements and also enables complete utilization of explosive strength. वही बात आ जाती है स्पीड में. मोस्टली जैसे हमने 11th क्लास में हमारे जो HP के टेस्ट हुए थे उसमें भी जो स्पीड का हमने वो किया था 25 मीटर रन 4 बार डंबल्स को इधर उधर करके, उसमें भी हमने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही नापी थी. तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्पीड के लिए, एक्सेलरेशन. Hardik, I want to just make one point here. Yes sir. With the help of the shuttle run, we used to measure the coordinative ability, agility, not flexibility. Flexibility is measured by that box sit and reach test. Okay sir. And sir, explosive strength? जो लकड़ी के बॉक्स के ऊपर लगा. Explosive strength is always measured with the help of short sprints. Okay sir. 50 meter, 100 meter. These are the things. With the help of that, we can just measure the explosive strength. Right? Explosive strength means how quickly you are able to gain the maximum. Yes sir. Speed. और सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपकी बॉडी कितनी जल्दी एक्सप्लोसिवली कॉन्ट्रैक्ट की, रिएक्ट की. ठीक है. चलो. I'll correct myself. Not that, but 50 मीटर जो हमने वो स्प्रिंट किया था टेस्ट करने के लिए, वो उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है. Now next point is biochemical reserves and metabolic power. ये थोड़ा बायो में जा रहा है. Muscles requires more amount of energy and high rate of consumption for maximum speed performance. स्ट्रेंथ में क्या चाहिए होता है हमें? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. पर स्पीड के लिए हमें हाई रेट ऑफ कंजप्शन भी चाहिए होता है मसल्स के द्वारा. तो पर्सनली आई से कि स्पीड इज बेटर देन स्ट्रेंथ. क्यों? और इसमें ज़्यादा एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं. तो जैसे कि दीपेश ने हमें बताया था कि मसल्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर स्ट्रेंथ, पर स्पीड में जो हाई रेट ऑफ रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होगा ट्विच फाइबर्स, मसल फाइबर्स में, वो हमें मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस देगा. फॉर दिस पर्पस the stores of ATP and CP in the muscles. ATP is the form of an energy which mitochondria stores
in muscles should be enough. If the store is less, the working process of the muscle slows down after a short time. Now see, here I will just intervene. Right? Only one point I just wanted to mention here. Yes, sir. Biomechanical reserves and metabolic power. Yes. Muscles requires more amount of energy and high rate of consumption of maximum speed performance. Speed is always an anaerobic kind of activity. What is aerobic? So, yes. Aerobic activities are those activities which are performed for the prolonged period of duration or prolonged period of time in the presence of oxygen. Whereas anaerobic activities are high intensity exercises and performed for the shorter duration. But we require larger amount of energy for that. Now here, for this purpose, the stores of ATP and CP in the muscles should be enough. Now why we are saying this ATP and CP? The reason is, in anaerobic kind of activities, we are not having that opportunity to where we are able to exhale oxygen and then the oxygen goes into the muscles and the oxidation takes place and the energy get produced. उतना टाइम नहीं होता क्योंकि जो anaerobic kind of activity है वो shorter duration का होता है और high intensity होती है. And we require lot of energy for that anaerobic kind of activity. And at that time, whatever the energy are stored in our muscles, अब muscles में इनमें कहाँ स्टोर होती है? बोले माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बोले पावर हाउस ऑफ द सेल. और एटीपी और सीपी कहाँ पे स्टोर होते हैं? बोले माइटोकॉन्ड्रिया में. That ATP and CP is used at the time of these speedy work. If the store is less, the working process of the muscles slow down after short time. अगर मान लीजिए आपकी मसल्स ट्रेंड नहीं है और आप 100 मीटर भागे, तो जितनी मसल्स में आपकी एनर्जी स्टोर थी उतनी देर तक तो आप दम लगा के भाग ली, और जैसे आपकी वो एनर्जी एग्जॉस्ट हुई, you start feeling tired and your speed comes down. Are you getting my point? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. सबको मेरी बात पकड़ में आ रही है? कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. आप खोल के साइन कर दो. Yes, sir. वेरी गुड. तो बात समझ लो कि हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको अपना एक्सरसाइज शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमको डाइट ऐसी लेनी पड़ेगी कि हमारा जो रिजर्व है, रिजर्व एटीपी और सीपी कहाँ मिलते हैं? रिजर्व से मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं. तो हमारी मसल्स में ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो. अब माइटोकॉन्ड्रिया कब ज्यादा होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो. ज्यादा से ज्यादा सेल प्रोड्यूस कब होंगे? जब हम रेगुलर खेलेंगे कूदेंगे. बात समझ में आ रहा है? वर्च्यू सर्कल है. और जितने ज्यादा सेल्स हमारे मसल्स में होंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी. स्पीड बढ़ाने के लिए हमको एनर्जी भी मिलेगी. पकड़ में आया हार्दिक बात? Yes, sir. वेरी नाइस. एक ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी वाला और लेना चाह रहा हूं. इट इज ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड. फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड. नाउ गुड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज मैक्सिमम रेंज एंड ऑल्सो इनेबल्स complete utilization of explosive strength. इसको आप पकड़ना भूल. मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट. नाउ आप मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट कैसे कर पाएंगे? अगर हम क्लास में होते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं उसको. स्ट्राइड. मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जब भी भागे तो क्या करें? ब्रिंग योर नी अप. कैन यू रिमेंबर माय कमांड? Yes, sir. Can you remember my command? Whenever you used to run for sprint races, I always say bring your knee up. जितना नी ऊपर ले जाएंगे उतनी आपकी स्ट्राइड लंबी हो जाएगी. क्या मुझे देख पाओगे क्या? एक बात मुझे बताना है. मेरे पैरों के मूवमेंट दिख रहे हैं? Can you see me? Here? Yes, sir. मैं
दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ? Yes, sir. Mavni. sir. पूरा नीचे तक? No, sir. अब नाउ सी, Yes, sir. नीचे दिख रहा है. नीचे दिख रहा है? अब अब दिख हाँ सर पूरा. सर थोड़ा दिख पीछे. रहा है? Yes, sir. अब दिख रहा है अच्छे से. Now see the red movement. मैंने इतना पैर उठाया, आई एक्सटेंड माय नेक एंड यहाँ पर लैंड किया. एंगल बेस्ड व्हाट? अगर मैंने नी थोड़ा ऊंचा उठाया तो यहाँ पे उठाया, यहाँ से मेरा स्ट्राइक लंबा जाएगा. अगर मैंने पैर को पूरा उठाया तो लंबा स्ट्राइक, और अगर नी को थोड़ा कम उठाया तो मेरी स्ट्राइक यहीं खत्म हो जाएगी. जितना मैक्सिमम नी अप जाएगा उतना लॉन्ग स्ट्राइड होगा. रेंज ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइंस रेंज ऑफ मूवमेंट. जितना आप ज्यादा बेहतर तरीके से इजीली अपने घुटने को ऊपर ला पाएंगे उतना ज्यादा रेंज जाएगा. स्पीड डिटरमाइंस. बात समझ में आ रहा है? और जितना लंबा स्ट्राइड होगा आपका, जितना ज्यादा लंबा स्ट्राइड होगा आपका, क्या होगा? उतना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा. हार्दिक क्या हुआ? सर बस इतना ही था बस सर. खत्म हो गया? ऑल हाँ, राइट, सर. चलो एक दो पॉइंट मैं भी बता देता हूं. Now see, physiological factors determine speed, nervous system and its mobility. To generate more speed, the muscles have to contract and relax at maximal speed. And these actions are possible when the motor impulses from central nervous system initiate. The speed of person largely depend on mobility of nervous system. जितना नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी होगी बेटर, उतना स्पीड बेटर हो जाएगा. कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर्स, दिस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन फास्फोजन स्टोरेज. To exhibit speed performance, muscles need high amount of energy, and the amount of phosphagen storage in the muscles, that ATP, right, determine the speed. Okay, good. I'm happy that आज दोनों के दोनों जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से हुए हैं. और 2:39 हो चुके हैं. तो मैं क्या करूंगा कि आज मोहम्मद को परेशान नहीं करूंगा. मोहम्मद और नमन आया हुआ है, नमन आया हुआ था बट ही लेफ्ट, राइट, नो प्रॉब्लम. सो मोहम्मद, नमन और नीति ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सब लोग विंडो खोल लें तो बात कर लें. Can everybody open the window? किसी कोई सवाल बेटा? आज दोनों प्रेजेंटेशन अच्छे हुए. Everybody please No, open the sir. window. Okay. उमेश भाई, हार्दिक. No, sir. No doubt. ओके, राइट. बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन हुए, दोनों ने बहुत अच्छे से बनाया. तो ये मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा, देखो इसमें ज्यादा मजा आता है जब आप 1, 2, 3 स्लाइड बना के प्रेजेंट करते ना, इट लुक्स गुड. और वहां पे मैं भी इन्वॉल्व अच्छे से हो पाता हूं. समझ रहे हैं? 2 वे कम्युनिकेशन मजा नहीं आता क्योंकि मेरे अलावा किसी और की बात सुन पाता. मोहम्मद ओपन अ विंडो बेटा. तो ध्यान ये रखना है कि बस ऐसे ही प्रेजेंटेशंस को सिंसियरली करना है. मोहम्मद आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया? Yes, sir. मोहम्मद की आवाज आ रही है? Yes, Okay. sir. Yes, sir. हो गया. Now
नमन को भी बोलना कल वो टाइम से आ जाएगा, ठीक है, एब्सेंट नहीं होगा। सिद्धार्थ को बोलिए एब्सेंट नहीं होना है। जितने लोग हैं उनको बोलो कि दे हैव टू बी इन द क्लास, सो दैट ये सब मैं इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स डालूंगा इसके, किसने कितने प्रेजेंटेशन किए, ये सब मैं नोट करता जा रहा हूं। और जो भी भागेगा, जो नहीं करेगा, डाटा मैंने तैयार करके अपना रखूंगा मैं भी, क्योंकि उसका रीजन है, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं जा रहा हूं, तो चीजें थोड़ी सी चल रही हैं और मुझे एक जगह इकट्ठी करना पड़ेगी, राइट। तो टेल एवरीबॉडी, हर आदमी को कम से कम 4-5 प्रेजेंटेशन तो करने ही करने हैं पूरे सिलेबस में। एक दिन मुझे बैठ के ये भी बात करनी है कि प्रैक्टिकल बुक को लिखने के लिए हम कब मिलना चाहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल नोटबुक वगैरह लिखने की बात है या नहीं है मन में? कब करें इसके ऊपर बात? इस चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपना। आज अच्छा लगा मुझे, दोनों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हुए। एंड टेल नमन वो भी कल आए, ठीक है। और चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।